Okay, today we are going to discuss the chapter number 5. The title is Corporate Governance and Corporate Compliance, and we relate the ethics with corporate governance. So first, we have to be overview from the keyword. That is, what is corporate governance is and how that work. Governance means to control over, monitor, control, regulate. You can use that word. And who are the corporate head? BOG, Board of Governance, BOD, Board of Director, Executive, CEO, CEFO, CIO, COO, all executive positions are there, and then general manager, and then the regional manager, and then the directors. All these are the corporate head, the top management होती है. And the corporate governance means what? Who govern, who control, who regulate, who make able to take decision. All right. So corporate governance means what? Corporate governance means a higher authority, the top management, how they control, how they regulate, how they take a decision under the light of ethical principles and values. So that's why we have a title here, corporate governance and corporate compliance. And what does it mean? Compliance means the application, ठीक है, यानी implications हैं इन रूल्स की. जो हमने इतनी ethical theories पे बात की, ethical principles देखे, all these theories should be applied in the managerial operation, in the effective decision making as well. So that's why we have a title, corporate governance and corporate uh, compliance. So first we have to discuss the terminology, that is ethical leadership. तो कौन होगा एथिकल लीडरशिप? ऑब्वियस सी बात है, एक ऑथेंटिक लीडर जो कमिट करेगा, जो ट्रस्ट वर्दी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, not by the words but by the actions, but by the performance. तो वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के, एथिकल वैल्यूज, उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. अप्रोप्रिएट कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, कोड ऑफ कंडक्ट से बचते यानी प्रिंसिपल्स हैं, एज अ रूल टू रन द ऑर्गेनाइजेशन. और जितने भी एक कंडक्ट हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए. वो पर्सनल एक्शन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी विद इन द पीपल, अमंग द पीपल, ये एक अप्रोप्रिएट हो, सूटेबल हो. ठीक है. तो कीप रिमेंबर दीज वर्ड, टू वे कम्युनिकेशन. ठीक है. एथिकल लीडरशिप कोई एक शख्स ही अच्छे से परफॉर्म करता रहे और बाकी लोग बड़ी जिम्मा हो जाए, नो. If you want to make an ethical culture, if you want to apply in the whole organization, if you want to be governed, the ethical principles should be applied at all. Is a two-way communication. तो जब भी आप रीइंफोर्समेंट करते हैं, अच्छा रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट में रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इंसेंटिव दिए जाते हैं. अच्छा करेंगे, फुलफिल करेंगे, रूल्स को मानेंगे, ओबे करेंगे, तो आपको एक इनाम दिया जाएगा. लेकिन इसी तरीके से अगर आप वॉलेट करेंगे, लॉ ब्रेक करेंगे, रूल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर कोई ना कोई डिसिप्लिन एक्शंस होंगे. इसी तरह डिसीजन मेकिंग के वक्त तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि योर डिसीजन मेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन द ethical principle which is owned by the top management, which is spread with the management. ठीक है. जो आपकी एक एथिकल पोजीशन है उसको आप रिफ्लेक्ट करते हैं. तो ये तो हो गई हमारी एथिकल लीडरशिप. नाउ we are talking about transformational leadership. These are the types of leadership that we have to be required while we are taking the decision. And we then move on to the chapter as well, what the author said about that. The author said that the transformational leadership is very required for that purpose. Why? Because they set a long term vision. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन होता है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो होता है जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जो कंसिडर करता है, एक एक शख्स को कंसिडर करता है, उसको वैल्यू करता है, और फिर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होती हैं. जो हमने एक वायरस की बात की थी कि एक विजन होता है, फिर आई. अगर हम देखें तो उसके पास 4 आई हैं. फर्स्ट आई इंस्पिरेशनल है,
second I idealize the influence, and third I individualize the consideration, and four I intellectual stimulation है, यानी वो अपनी इंटेलेक्चुअल इंसाइट से चीज़ों को स्पेकुलेट करता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है। तो एथिकल लीडर ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशनल जो रिफॉर्म लाए, जो बदलाव लाए, जो चेंज लाए और उसका विजन क्लियर हो, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे। तो हियर इज अ पर्पस of transformational leadership that is applied in the management. The first one is purposeful होता है, वो अपने उस ethical purpose और motive को achieve करता है। Secondly, उसका जो perspective है, theoretical perspective है ethical, वो clear होता है, crystal clear होता है। And the third one, patience. They have a patience to follow and implement that policies. And third one, persistence. Persistence means कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहना, एक ही चीज़ को करते चले जाना। ये नहीं कि आज तो आपने एथिकल प्रिंसिपल्स समहाउ फॉलो कर लिए बट लेटर ऑन यू विल बी ब्रेक, तो कभी फॉलो होते हैं तो कभी फॉलो नहीं होते। नहीं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, परसिस्टेंस होने चाहिए। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है जो वो पूरे एथिकल कल्चर को डेवलप करने में हेल्प आउट करता है। बल्कि अभी वी विल डिस्कस द एथिकल साइकिल एज वेल। तो उसमें हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंट कितना ज़रूरी है। एक और फॉर्म ऑफ लीडरशिप है, दैट इज द ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। ट्रांसैक्शन मीन्स अ सिंगल एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटी, एक ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं जो फर्म्स के अंदर पॉसिबल होती हैं। तो डे टू डे बेसिस पे जो आपकी जितनी ऑपरेशंस होते हैं, फ्रॉम द रिसेप्शन टिल द अकाउंट्स टिल द पब्लिक डील एंड टिल द ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सो उन सारे डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर विद इन द फर्म आप क्या करते हैं, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप को प्रमोट करते हैं। एंड व्हाट इज द ट्रांसैक्शनल लीडरशिप? द ट्रांसैक्शनल लीडरशिप जो है वो कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है स्टेटस को ऑफ द फर्म। स्टेटस को दैट इज द पोजीशन, द बिलीफ, द वैल्यू, द सिस्टम दैट दे अडॉप्टेड। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने नॉर्म्स बनाती है ना, उसको ब्रेक नहीं होने देते कि हम अपने उसूलों को नहीं तोड़ने देंगे किसी भी सूरत में। तो फिर वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट रखते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टू मैनेज एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, उनको फिर इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है। और ठीक है, तो ये है ट्रांसैक्शनल लीडरशिप जिसमें डे टू डे बेसिस के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो रिकंसाइल करता है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल्स में ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, परसुसिव है, लेस फेयर है। इन जो स्टाइल्स हैं इन सबको के कहाँ पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, कहाँ वन वे डायरेक्शन होगी, कहाँ म्यूचुअल कंसेंसस के साथ होगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है ये रिकंसाइल करता है कि जो एथिकल वैल्यूज हैं वो भी, अब एथिकल वैल्यूज भी बहुत सारी हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास ईगोइस्टिक थी जिसमें इंडिविजुअल मोटिव था, लेकिन एक एल्ट्रिस्टिक थी जिसमें हम पूरी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, अखुवत मसावत जिसे कह रहे हैं आप। एक आपके पास डिओंटोलॉजिकल पोजीशन है कि be loyal to your duty. First, perform your duty first. Whatever the condition, you will be perform your duty unconditionally. And then the focus on the social obligation as well. Okay, what we're talking about that the transformational and the transactional. The both form of leadership has a purpose to apply all these theories and fulfill the social obligation. Uh, then we have both reconciliation. One is transformational and another is transactional leader. ट्रांसैक्शनल लीडर क्या करता है कि इंडिपेंडेंट व्यू देखता है एक्सटर्नल इवेंट्स के, और वो भी अल्ट्रिस्टिक मोटिव यानी कलेक्टिव बेनिफिट्स देखेगा सबके। और टिलियोलॉजिकल पर्पसफुल, टिलियोलॉजी मीन्स द पर्पस, कि जो हम देखेंगे कि एवरी वन हैज़ इन their own self interest is protected or not, कि हर किसी का अपना मफाद है, यहाँ पूरा हो रहा है, म्यूचुअली बेनिफिट्स भी पूरे हो रहे हैं। तो वो फोकस करता है इंडिविजुअल। एंड यू कैन से दैट ट्रांसैक्शनल लीडर जो है वो इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस को देखेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर यू कैन सी दैट इन द स्लाइड, वो फोकस करेगा सोशल ऑब्लिगेशन के ऊपर। जो
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो डियोंटोलॉजिकल पोजीशन को देखेगा, यू हैव टू बी परफॉर्म एट एनी कॉस्ट बिकॉज इट इज अ कंपैरेटिव categorical imperative and you have to do at any cost and you will be loyal to your duty. तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आपको कमिट करेगा, लेकिन और साथ में जो ट्रांसैक्शनल लीडर है वो आपकी डे टू डे इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आपके सेल्फ इंटरेस्ट को, क्योंकि देखें अगर आपके सेल्फ इंटरेस्ट और देखें एक तरफ सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं और एक तरफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होते हैं, ये दोनों को रिकनसाइल होना जरूरी है। अगर ऐसा हो कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा हो, मफाद ज़्यादा हो, तो इंडिविजुअल को ग्रीवेंस होगा, परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी और ये अनफेयर भी होगा। बिल्कुल ऐसे ही इसका अगर हम अपोजिट करें कि अगर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो बेनिफिट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ कंसर्न ओवर इट। तो ये दोनों को रिकनसाइल होना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमें एक एथिकल मॉरल पर्सन से एक लीडर बनने के लिए हमें ये चार चीज़ों की बेहद ज़रूरी होती है। ट्रेड्स कहते हैं सिफात, खूबियाँ आपके अंदर ऐसी मौजूद हों जो एक एथिकल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करे। फिर आपका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट हो, अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो होता है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो और जो सबके लिए सोचता हो। इसी तरीके से जो आपके डिसीजंस हैं, ये नहीं कि आपने सक्सेसफुल ला दिया, आपने टारगेट्स को अचीव कर दिया, आपने अपने गोल तो फुलफिल कर दिए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो आपने फैसले लिए, डिसीजंस लिए, वो बहुत ही कोई अनफेयर थे, अनएथिकल थे। इसी तरीके से मोरल मैनेजर होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो वैसे ही हमें आज के ज़माने में एक मोरल एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है। मोरल एंटरप्रेन्योर वो शख्स है जो एथिकल प्रिंसिपल्स को भी मद्देनज़र रखता है, और ऐसा ना हो कि हम भागें तो दौड़ें तो कामयाबी भी हासिल करें, मगर वो हम रोनते हुए, हम लोगों को के दिलों को तोड़ते हुए, हम जो है वो घमंड करते हुए, घपले करते हुए और बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसिंग के साथ जो है वो अनफेयर करने के बाद हम जो है वो अचीव कर रहे हैं। तो एक मोरल एंटरप्रेन्योर की जरूरत होती है एक मोरल पर्सन से एथिकल लीडर बनने के लिए। तो एथिकल लीडर कौन होता है? जिसकी गुड कैरेक्टर हो, ट्रेट्स हो, जिसका अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो और जिसकी एथिकल डिसीजन मेकिंग हो। And finally, what I say, it become a moral entrepreneur. We need a moral entrepreneur who have a social insight, who have a vision for all. तो मोरल मैनेजर कौन होता है? जिसको मैंने जो मोरल एंटरप्रेन्योर नाम दिया आपके सामने, जो मोरल वैल्यूज को ट्रांसफर करता है, मोरालिटी को ट्रांसफर करता है मैनेजर में, अपने एम्प्लॉयज में, फिर वो इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है अपनी एथिकल वैल्यूज के, नहीं ये हमारी एथिकल वैल्यूज हैं, इसको कोई भी ब्रेक नहीं करेगा, उसको कोई ब्रीच नहीं करेगा। तो वो सेट करेगा, वो लोगों में उसको कम्युनिकेट करेगा। इसी के बरक्स अगर एक अनएथिकल लीडर होगा, उसका मोरल पर्सन बहुत ही वो वीक मोरल मैनेजर है, तो वो अपना ही इंटरेस्ट देखेगा, सिर्फ ज़ाती मफाद को अपने देखेगा, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट को देखा होगा। तो जो कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा तरजीह दे रहा होता है एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम कहेंगे कि ये शख्स जो है वो अनएथिकल है, इमोरल, वो लीडर नहीं बनेगा, इमोरल कहलाएगा। तो एथिकल लीडर के लिए हमने देखा कि एक मोरल पर्सन, मोरल मैनेजर जो है वही एक एथिकल लीडर बनता है। और क्यों? क्योंकि शुड बी द अल्टीमेट एथिकल गोल ऑफ एनी मैनेजर। और उसका असल मकसद क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह का कल्चर डेवलप करे और जो एथिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो लोगों में ट्रांसफर करे। ठीक है, लीडर का काम सिर्फ लीड ही करना नहीं, लीडर का काम अपने फॉलोअर्स को भी उस डायरेक्शन और उस एथिकल पाथ की तरफ लेके जाना है। तो ये हमने देखा, लेकिन हमें देखने में आता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो बड़े हाइपोक्रेटिक लीडर होते हैं। क्या मतलब इसका? कि जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ट्रस्ट, कमिटमेंट, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, तो वो सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों डिस्ट्रॉय कर देते हैं? वो इसलिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि वो बहुत ही कोई हाइपोक्रेटिकल होते हैं, यानी वो से वन थिंग अबाउट एथिकल वैल्यूज एंड देन एक्ट अनएथिकली। यानी कहते तो ये हैं कि बहुत अच्छा अच्छा, जब मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, अनाउंसमेंट होते हैं, फ्लायर्स होते हैं, सीएसआर प्रमोशंस होते हैं, मार्केटिंग्स होती हैं, तो वो अपनी एक इमेज डेवलप करते हैं एथिकल, लेकिन वो जो परफॉर्म करते हैं और उसके पीछे जो एक्ट होते हैं वो कम्प्लीटली होते हैं अनएथिकल। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत जल्दी रातों रात अमीर होता जा रहा है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा है, मगर पता लगा
कि वो जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के प्रोजेक्ट्स बना रहे थे वो तो पता लगा वो गवर्नमेंट की थी, वो तो पता लगा वो डिटेन प्रॉपर्टी थी, कब्जा की हुई थी, और इतने सालों बाद पता लगा कि लोगों का तो पैसे ही डूब गया। तो वो दावा तो ये किया कि हम शहर के लिए, हम मुल्क के लिए, हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगता है जब वो इंक्वायर होता है कि वो तो एक अनएथिकल एक्ट था। तो इस तरह ये जो हिपोक्रेसी होती है, ये हमें बहुत सारे इदारों में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे मैनेजर्स की हिपोक्रेसी नजर आती है। एक होते हैं इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इनकंसिस्टेंट ये है कि इनकी स्ट्रॉन्ग एथिकल ट्रेड्स या बिहेवियर नहीं है, जो कि हमने कहा ना कि ट्रेड, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग ये तीनों होगी तो फिर एक मॉरल पर्सन बनेगा ना, मॉरल एंटरप्रेन्योर बनेगा। अब उनकी उनकी जो है वो देखिए, जैसे कि एक्सेलेंस होता है ना, एक्सेलेंस, तो उसमें रिपीटेशन बार बार होती जाती 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 जाती, और यू विल बी गेट द परफेक्ट ऑफ इट। इसी तरीके से जब आप मिसाल के तौर पे झूठ बोलना, आपको कभी कुछ पता ही नहीं, आपको हमेशा से ये बताया गया कि एवरी टाइम यू विल बी स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलें। तो आप कभी कोई झूठ बोलेगा तो आप कहेंगे अच्छा ये झूठ क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं झूठ। नहीं नहीं, तुम झूठ नहीं बोलना। कहा नहीं, मैं तो बोलता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं झूठ होता भी क्या है। तो यानी जो नेकी वो नेकी होती है जिसको याद ना करना पड़े कि ये नेकी भी है, वो आपकी एक हैबिट बन जाए, वो आपकी डे टू डे प्रैक्टिस बन जाए। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू था एरिस्टोटल का। तो एरिस्टोटल यही कहता है जो गुड होता है, वो वर्च्यू होता है, वो एक्सीलेंस रिपीटेशन के साथ आता है। ये नहीं कि चलो भाई जुम्मा, चलो भाई जुम्मा मुबारक, चलो सब टोपी लगाओ, सब नेकी के काम हो, चलो भाई संडे आ रहा है, संडे नेकी का दिन मना लो। एक दिन नेकी का नहीं होता, बल्कि सारे दिन नेकी के लिए, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए आपकी मोरल वैल्यूज़ के साथ। ये नहीं कि कभी आपने कंसिस्टेंट नहीं है, कभी आपने एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो कर लिया, कभी आपने ब्रेक कर दिया। तो ये आपके जो है, अब हम फाइनली बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। एज आई टोल्ड यू, व्हाट डज इट मीन, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम को कंट्रोल करना ऑर्गेनाइजेशन के। और मैंने आपको बताया जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन अगर कभी कोई क्राइस आएगा या कभी किसी कोई आंसरेबल होगा, कोई सू होगा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टेक होल्डर नो, शेयर होल्डर्स नो, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बल्कि हायर मैनेजमेंट। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही अकाउंटेबल होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी वो सिस्टम को गवर्न कर रहे थे, वो सिस्टम को कॉपरेट कर रहे थे। वरना कोई ये कहना कि भाई इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ भी एथिकल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम किसको ब्लेम करेंगे, हम कहेंगे हु इज अकाउंटेबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हम कहेंगे टॉप मैनेजमेंट। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जिम्मेदार हैं इसके। तो इसलिए ethical vision can be measured and can be monitored, can be evaluated, and this process in this system is called the corporate governance. ठीक है, अगर आप अपनी नोटिंग करते हैं तो in a simple way you can write it in that manner that corporate governance is a top management who has right, who has a control and direct over the day-to-day operation. And what is the purpose behind to control and regulate? To maintain the ethical values. I repeat it again. Corporate governance is that type of system in which we control, regulate, and direct the employees and the other members to maintain what? To maintain the ethical values. ठीक है, तो ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इम्प्लीमेंट कराते हैं पॉलिसीज को, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, और वही रेगुलेट करते हैं। ठीक है, आपने ये सियासत में भी बहुत सुना होगा टीवी चैनल्स पे, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस किसे कहते हैं, जैसे कि जो पार्लियामेंटेरियन है, जो पूरे ब्यूरोक्रेसी को चला रहे होते हैं, तो वो गवर्नेंस कहलाती है। जो किसी एक सिस्टम को रन करते हैं उसको गवर्नेंस कहते हैं। तो यही ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट सेक्टर की टर्मिनोलॉजी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो पूरे कॉर्पोरेट को, आपकी इंडस्ट्री को, आपकी इस फैक्ट्री को, आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है, बड़ी पोजीशंस पर है। तो वो आपको, वो रेगुलेट भी करेंगे, वो अकाउंटेबल भी होंगे, और वो ही इम्प्लीमेंट करेंगे। जितनी भी कॉर्पोरेट की कंप्लायंस होंगी, कभी किसी कंपनी पे कोई सू किया जाएगा तो किसके नाम पे करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे। अगर कभी कुछ अनएथिकल फ्रॉड होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबल होगी।
तो ये मेरे ख्याल से आर्गुमेंट आपको क्लियर हो गया, मगर इसको हम इसको और अच्छे से देखते हैं। इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक नाम आ जाता है, जो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो है बीओडी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कहीं 3 डायरेक्टर्स होते हैं, कहीं 5 होते हैं, कहीं 9 डायरेक्टर्स होते हैं, कहीं मोर देन दैट। ये तो डिपेंड करता है कंपनी के साइज के ऊपर, कितनी बड़ी कंपनी का बजट बिलियन में है, ट्रिलियन में है, एनुअल टर्नओवर क्या है। तो जो बेसिकली जो डायरेक्टर्स है ना, ये एजेंट है। ठीक है, जो डायरेक्टर एजेंट कौन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, कि जिसके वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आप कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टर ही जवाब देंगे कि भाई आप कहते हैं मैं फला कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो भाई अगर कुछ होगा कंपनी का तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप ही होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने वादा क्या किया है, आपने ये वादा किया है कि हम म्यूचुअल बेनिफिट की बात करेंगे, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि हम स्टॉक होल्डर के बेनिफिट्स की बात करेंगे। स्टॉक होल्डर समझते हैं आप, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय और फाइनेंसर, टैक्सेशन, इस सारे इदारों को रिस्पॉन्सिबल, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको सेफगार्ड करना, उनको मुनाफा देना, उनके पैसे को महफूज रखना, उनको सेफगार्ड देना, ये सब जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं भूल ही गया बताना, वो है कस्टमर। ठीक है, वो भी तो एक स्टेक होल्डर है ना, उसका भी तो स्टेक है इस कंपनी के साथ, कि वो लॉयल्टी दे रहा है आपको, वो आपको एक आपके प्रोडक्ट को एक इमेज दे रहा है, परचेज कर रहा है, ओन कर रहा है, तो आपने उसको भी, उसकी भी लॉयल्टी को ब्रेक नहीं करना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम ये है, इन अ वन वर्ड, कि वो मेंटेन करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द स्टेक होल्डर। तो ये हमने देखा यहाँ पे। अब इसमें ये और फर्दर क्लासिफिकेशन है, इनसाइड बोर्ड, आउटसाइड बोर्ड, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। कि जब एक बोर्ड बनता है तो कुछ बड़े पार्टिसिपेटिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं। तो इनसाइड बोर्ड मेंबर्स जो फाइनेंशियल मैटर्स को देख रहे हैं साथ में, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देख रहे होते हैं। तो इन अ सिंपल वे यू कैन से दैट जो ईच डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं कि हमने एक कोर एथिकल वैल्यूज जो हमारे बोर्ड मेंबर्स में होनी चाहिए, और इस टर्मिनोलॉजीज को हमने अच्छे से देखा था। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, दयानतदारी, लॉयल्टी, वफादारी हो, कमिटमेंट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं आप, जिम्मेदारी, और फेयरनेस। फेयरनेस यानी जब वो फैसला करे जस्टिस के साथ करे, अनफेयर ना हो, बायस ना हो। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ओन करे, वो ओन करे पूरे इदारे को, वो ओन करे अपनी टीम को, वो ओन करे अपने उन फैसलों को। तो एक सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो ये बिहेवियर अगर होंगे एथिकल, तो हम कहेंगे कि ये गुड बिहेवियर है, ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये एथिकल बिहेवियर है किसका, बोर्ड। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो हम कहेंगे जो बोर्ड है ये एथिकल नहीं है, ये अनएथिकल है। अब ये बहुत फर्दर टाइप्स और बताएंगे बुक में, कि पैसे सर्टिफाइंग, एंगेज, इंटरवीनिंग, ऑपरेटिंग। तो बोर्ड की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। आपको जो, अगर आपको समराइज करें तो पॉइंट ये बनता है कि एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, रिप्रेजेंटेटिव तो हैं, और उन रिप्रेजेंटेटिव को ही जवाबदेह होना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स को। तो ये हमने देखा स्टैनविक की बुक में, पीटर स्टैनविक ने जो एक पूरा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये दिया है किसके ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। वो कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो एथिकल है कि अनएथिकल है। ठीक है, और देखें कॉर्पोरेट सपोर्ट कैसे है कि वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो जाए। ठीक है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू द अकाउंट, और जितनी भी सोर्स हैं मेंशन किए जाएं, ताकि उसमें किसी किस्म का कोई घपला मौजूद ना हो। तो here is a question in front of you, that was the last slide, and second केस स्टेटमेंट क्या आते हैं कि रिलेशनशिप अमंग द सीईओ, कंपनसेशन हो गया, एथिकल रेपुटेशन हो गई, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस हो गई। तो कुछ ऐसा ना करें कि नुकसान उठाना पड़े, और अगर होगा तो फिर सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, मुआवजा देना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म और सीईओ के अपने जो भी मरासलात होते हैं उनको रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर वो अपने बेनिफिट देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट नहीं देखेगा। फिर उसको क्या पड़ी है कि ऑर्गेनाइजेशन एथिकल हो, अनएथिकल हो, ग्रो करे, स्टेक होल्डर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद को देखेगा, अगर अपने कॉम्पनसेशन को देखेगा। तो ये सारी हमने देखी, और ये क्वेश्चंस हैं
एक ऐसे ही एक रिफॉर्म रिकॉल करने के लिए। तो पहला सवाल जैसे कि इसमें मेंशन है कि भाई कौन अथॉरिटी होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। कौन अथॉरिटी होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सीईओ होगा। सीईओ का क्या काम है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, अकाउंटेबल है, उसकी एथिकल वैल्यूज़ को मेंटेन करना है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप दिखानी है। अच्छा, फिर एक और सवाल इसमें बन रहा है कि व्हाट सर्कमस्टांसेस द पावर कैन बी डिक्रीज, और यू कैन से दैट द के हाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज द पावर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द लेजिटिमेट पावर टू एक्सरसाइज, so that's why we call the corporate governance। उसके पास पूरा मैकेनिज्म है, सिस्टम है, जहाँ वो कॉर्पोरेट कंप्लाइंस करते हैं। बल्कि सारी कॉर्पोरेट कंप्लाइंस कहाँ से होकर आती हैं, बोर्ड से आती हैं। ठीक है। एंड फाइनली ये दोनों क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांसैक्शनल लीडर। तो वन वर्ड में डिफाइन करें तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर विजन के लिए था, सोशल ऑब्लिगेशन के लिए था, इंस्पिरेशन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन थी जिसके अंदर इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना था। और ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी थी ताकि हम अपने उस एथिकल पर्पस को अचीव कर सकें। ट्रांसैक्शनल लीडर क्या होता है, जो डे टू डे ऑपरेशंस एंड एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म करे और रोज़मर्रा के जो मामला एंड एक्टिविटीज़ जो हैं डे टू डे, उसके अंदर एथिकल वैल्यूज़ को इंटैक्ट करे। तो ये हमने आज इस पूरे लेक्चर में कवर अप किया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेल। एंड नाउ वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन। ठीक है ना, देखिए आपने ऑथर ने किस तरह से इसको सम अप किया। होप्समर मॉडल ऑफ ट्रस्ट कमिटमेंट एंड एफर्ट, TCE, के मोरल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करें कि आपकी ड्यूटी क्या है, टॉप मैनेजमेंट। फिर मोरल रीजनिंग देखें, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, कोई तो क्राइटेरिया होगा ना जिसकी बेसिस पे आप कहें सही है गलत ये है। एंड द थर्ड वन, पोजीशन ऑफ मोरल करेज। और फिर आपकी इतनी हिम्मत और इंटेग्रिटी हो कि आप उसके लिए एफर्ट्स भी करें, एक्शन लें। तो आपने देखा कि ड्यूटी से ट्रस्ट होगा, और जब आप मोरल रीजन देंगे व्हाट इज राइट, इससे कमिटमेंट होगा आपका शो। और जब इंटीग्रिटी शो करेंगे तो आपके एफर्ट्स, ट्रस्ट, कमिटमेंट एंड एफर्ट, ये तीनों जो मॉडल हैं ये बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक मोरल पर्सन के लिए। सो ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, वी आर गोइंग टू एंड द